Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. In the previous lecture, we started the first chapter, the first unit of the new textbook. As far as the new textbook is concerned, it's a mixture of the previous textbook and there are some new chapters as well. So if you haven't bought it yet, kindly buy it. So we will continue with the text. The unit is Responsibilities of the Youth. It's Quaid-e-Azam speech at Dhaka University, and the SLOs are the same that were discussed in the previous lecture as well. The speech was given on 24th of March 1948 and it was recorded by Radio Pakistan. The theme is the same as in the previous lecture. You can take a snapshot from this video or by pausing the or by watching the previous video. So far we have discussed the initial address in which Quaid stated the different difficulties that Pakistan had to face and the new troubles that are raising their head as far as the advent of Pakistan is concerned, the difficulties that we are facing internally, and we will continue from that area. So let us indulge and start reading. Those who are playing this game are living in a fool's paradise, but this does not prevent them from trying. A flood of a false propaganda is being daily put forth with the object of undermining the solidarity of Muslims of this state and inciting the people to commit acts of lawlessness. In the previous slide, in the previous lecture, we were discussing this, the activities by the enemies which encouraged provincialism, which encouraged language conflicts. So this propaganda is being daily put forth. It was just at the advent of Pakistan. Still, these problems are persistent in our society today. Language classes, nationalistic agendas, provincialism, these things are still faced by Pakistan today. But at that time, Pakistan was just rising up. It has just been born. So right now, we are much equipped in handling these situations. People have understood that the fifth columnists are just doing this for conspiracies and to prevent Pakistan from developing further. So at that time as well, Pakistan was facing these problems, and people were being incited by the conspirators to commit acts of lawlessness. The recent language controversy, in which I am sorry to make note, some of you allowed yourselves to get involved even after your Prime Minister had clarified the position, in only one of the many subtle ways whereby the poison of provincialism is being sedulously injected into this province. So, very slowly, seductively, people are, by this sedulously, Quaid means that जैसे कि किसी को नशे का आदी कर दिया जाए, जैसे उसको इंजॉय कराया जाए, जैसे उसको ब्रेन वॉश किया जाए. तो ये ब्रेन वॉशिंग हो रही है. ब्रेन वॉशिंग क्या कि लैंग्वेज की बेस के ऊपर क्लैश क्रिएट किया जा रहा है कि उर्दू लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज होगी या बंगाली लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज होगी या पंजाबी होगी या पश्तो होगी, बलोची होगी, सिंधी होगी. तो एक लैंग्वेज तो आपको चाहिए ना, एक कॉमन डिनोमिनेटर तो आपको चाहिए ना, कि जो कि जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी स्टेट को चलाएं. तो प्रोविंशलिज्म को राइज दे के लैंग्वेज कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई और इस सिलसिले में लीडर्स ने फिर लोगों को इत्मीनान दिलाया, लेकिन स्टिल ये चीज़ चलती रही. Does it not strike you rather odd that certain sections of the Indian press, to whom the very name of Pakistan is anathema, should, in the matter of language controversy, set themselves up as the champion of what they call your just rights? यानी आप ये देख लीजिए कि उस वक्त इंडियन प्रेस भी वो जो है वो पाकिस्तान को, जो कि उसकी नफ़रत करता था. एनेथेमा की मीनिंग है, आप इसको ऐसे देख लीजिए कि एक
जिसको कुछ नहीं समझा जाए, जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसकी कोई औकात ना हो, जो कि उनके लिए ना एक गाली से कम ना हो, जैसे कि उनकी इज्जत लूट ली गई हो, तो ऐसे पाकिस्तान के नाम को कंसिडर किया जा रहा है। और वो जो है लैंग्वेज कंट्रोवर्सी ऐसे उसको डिस्कस कर रहे हैं इंडियन प्रेस वाले, जो इंडिया की प्रेस है यानी प्रिंटिंग प्रेस, कि जैसे आप लोगों की राइट्स की बात हो रही हो, यानी आपको उनकी सपोर्ट हासिल है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट आप लोग उठे, आपको इंटाइस किया जा रहा है, आपको जैसे कहते हैं ना हम लोग देसी लैंग्वेज में पंप अप किया जा रहा है कि आप लोग उठें और अपने हक के लिए लड़ें और ये और वो। तो ऐसे इस इशू को propagate किया जा रहा है। Is it not significant that the very person who in the past have betrayed the Muslims or fought against Pakistan, which is after all merely the embodiment of your fundamental right of self-determination, should now suddenly pose as the savior of your just right and incite you to defy the government on the question of language? I must warn you to beware of these fifth columnists. अब कायद ने फिफ्थ कॉलमिस्ट का जिक्र किया कि ये जो आउटसाइड फोर्सेस हैं, आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रही? स्टूडेंट्स से कायद आज़म कहते हैं कि वही लोग जो कि सबसे पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, मुसलमानों के साथ उन्होंने गद्दारी भी की, जब 1885 की स्ट्रगल हुई, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई और 1865 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, और उसके बाद मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने बेट्रेयल किया, और बहुत सारे उसमें मुसलमान भी शामिल थे जो कि अंग्रेज़ों के साथ थे। और अभी जब आपको डिफरेंट अपनी अलग रियासत मिल गई, आप लोग इस चीज़ को भी देख लीजिए कि बांग्लादेश या बंगाल साइड पे टीपू सुल्तान भी थे, और अंग्रेज़ों का साथ जो था वो बहुत सारे हिंदुओं ने दिया था ताकि टीपू सुल्तान की सल्तनत को गिराया जा सके। तो ये देख लीजिए कि सडनली ये लोग आपके सेवियर्स हो गए, और यही लोग आपकी राइट्स की बात करते हैं, और आप लोगों के लिए जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा रहा है वो क्या है? लैंग्वेज का। तो कायद-ए-आज़म कह रहे हैं कि मैं आपको ख़बरदार करता हूँ कि ऐसे फिफ्थ कॉलमिस्ट से बच के रहें। Let me restate my views on the question of a state language for Pakistan. For official use in this province, the people of the province can choose any language they wish. This question will be decided solely in accordance with the wishes of the people of this province alone, as freely expressed through their accredited representatives at the appropriate time and after full and dispassionate consideration. कि यहाँ पे मैं फिर आपके सामने एक बात क्लियर कर दूँ कि एक स्टेट लैंग्वेज तो होगी, लेकिन जो ऑफिशियल यूज़ हो लैंग्वेज यूज़ होगी, जो प्रोविंस के अंदर यूज़ होगी, वो लैंग्वेज आपकी विशेस के मुताबिक होंगी। आपकी सूबे की जो रिप्रेजेंटेशन होगी, जिनको आप इलेक्ट करेंगे, जिनको आप असम्बलीज़ में भेजेंगे, तो वही लोग बग़ैर किसी उसके, बग़ैर किसी जज्बात में बहे बग़ैर, इमोशनल हुए बग़ैर, अपनी फीलिंग्स का इजहार और अपने ऑफिशियल पर्पसेस का इजहार अपनी लैंग्वेज में करेंगे। दैट इज़ वुड बी द बंगाली लैंग्वेज। There can however be only one lingua franca, that is the language of intercommunication between the various provinces of the state, and that language should be Urdu and cannot be any other. अब यहाँ पे कायद एक बात बड़ी लॉजिकली कर रहे हैं। देखें लॉजिक, देखें कि देखें जो आपकी प्रोविंशियल लैंग्वेज है उससे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो लिंगुआ फ्रांका है, जो कि मेन लैंग्वेज है, मास्टर लैंग्वेज है, और वो मास्टर लैंग्वेज ऐसे नहीं कि वो हुकूमत कर रही है बाकी लैंग्वेजेस पे, ना। लैंग्वेज का इसका मकसद ये है कि इंटर कम्युनिकेशन जो हो, जो कि प्रोविंसेस के दरमियान हो, स्टेट के दरमियान हो, वो उर्दू ही हो सकती है। और इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? या इंग्लिश या उर्दू। तो उर्दू आप देख लें और इंग्लिश आप देख लें, चॉइस कौन सी है? तो उर्दू ही बेहतर ऑप्शन बनती है, क्योंकि अक्सरियत को उर्दू का ही पता है, उर्दू समझ भी लेते हैं। उर्दू के अल्फाज जो हैं वो आपको बरे सग़ीर की वेरियस लैंग्वेजेस में मिल जाते हैं। तो उर्दू विल बी अ सिंपल लैंग्वेज फॉर इंटर कम्युनिकेशन एंड द स्टेट लैंग्वेज एज वेल। लेकिन जो आपकी प्रोविंशियल लैंग्वेज है, जो आपकी असम्बली की लैंग्वेज है, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। The state language therefore must obviously be Urdu, a language that has been nurtured by 100 million Muslims of this subcontinent, a language understood throughout the length and breadth of Pakistan, and above all a language more than any other provincial language embodies the best that is in Islamic culture and Muslim tradition and is nearest to the language used in other Islamic countries. अब उर्दू की खासियत देखें, ये कायद-ए-आज़म जो थे वो लैंग्वेज के ऊपर देखें, उनकी ग्रिप देखें कि लैंग्वेज का मकसद क्या है। उन्होंने बताया कि ये मिलियंस ऑफ पीपल के
जो मुसलमान हैं वो बोल रहे हैं। पाकिस्तान में ये बोली जाती है लेंथ और ब्रेथ में, एक आसान लैंग्वेज है जिसमें इस्लामिक कल्चर और मुस्लिम ट्रेडिशन का असर भी है, और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि शक्ल और मुशाबियत में फ़ारसी, तर्किश, इवन अरबिक और इन सब से मुमासलत रखती है, तो उसके करीब तरीन है। तो एक इस्लामिक फैक्टर भी है, प्लस सिंप्लिसिटी भी है, प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मुसलमानों की अक्सरियत बोलती है। तो बेशक वो जिस प्रोविंस से भी हों, चाहे वो बंगाल से हों, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान से हों, चाहे वो पंजाब से हों, केपी से हों, सिंध से हों, तो वो लैंग्वेज जो कि कॉमन एक ग्राउंड प्रोवाइड करे वो उर्दू ही बनती है। और तो इसके लिए कोई लॉजिकल इसमें कोई मतलब कोई और लैंग्वेज आपके पास ऑप्शन है तो वो बता दीजिए। तो एक बड़ी लॉजिकल डिबेट की कायद आज़म ने स्टूडेंट्स के साथ। It is not without significance that Urdu has been driven out of the Indian Union and that even the official use of the Urdu script has been disallowed. These facts are fully known to the people who are trying to exploit the language controversy in order to stir up trouble. There was no justification for agitation, but did not suit their purpose to admit this. अब मसला ये है कि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उर्दू लैंग्वेज को बाकायदा स्क्रिप्ट से ख़त्म कर दिया गया। अब उसको देखें, इसमें बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। उर्दू का जो स्क्रिप्ट है वो अरबिक स्क्रिप्ट है, सेम जो कि कुरान का स्क्रिप्ट है, अलिफ बे ते। और जो बंगाली का स्क्रिप्ट है और हिंदी का स्क्रिप्ट है वो जो है संस्कृत का है। तो आप कौन सी वाली को चूज़ करेंगे? तो बीइंग अ मुस्लिम फिर कॉमन जो एक चीज़ है तो वो तो उर्दू लैंग्वेज ही बनती है। और इसका हिंदुओं ने भरपूर फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ की हुकूमत में, जब उर्दू स्क्रिप्ट को ही डिसअलाउ कर दिया गया, उर्दू को नापैद करने की कोशिश की गई। लेकिन ये देख लें कि अब लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को एक्सप्लॉइट करके उसकी वजह से ट्रबल क्रिएट की जा रही है। ठीक है, बांग्लादेश में जो लैंग्वेज है वो हिंदी में लिखी जाती है, यानी संस्कृत का स्क्रिप्ट लिखा जाता है, ठीक है, उसको आप यूज़ करें, लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए आपको उर्दू आनी चाहिए और वो उसका इस्तेमाल होगा। ये बात कायद ने की और बड़ी ही आखिर में कहते हैं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये एजिटेशन की जाए और आप लोग जो है उसका हिस्सा बने। Their sole object in exploiting this controversy is to create a split among the Muslims of the state, as indeed they have made no secret of their efforts to incite hatred against non-Bengali Muslims. Realizing, however, that the statement that your Prime Minister made on the language controversy on return from Karachi left no room for agitation, insofar as it conceded the right of the people of this province to choose Bengali as the official language if they so wish. These persons changed their tactics. अब मसला ये है कि लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को बार बार डिफरेंट एंगल से उसको स्टिर अप किया जा रहा है। किसी तरीके से लोग जो है लैंग्वेज की बेस के ऊपर वो नस्ली लसानी किस्म की वह फसादात में पड़ जाएं, और बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ हमें ज़ेब नहीं देती। तो जो नॉन बंगाली मुस्लिम्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक हेट्रेड क्रिएट करी जा रही है, यानी रेशल बेसिस पे इसको वो किया जा रहा है। हालांकि जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि ऑफिशियल जो आपकी विद इन प्रोविंस लैंग्वेज है वो बंगाली ही होगी, आप चूज़ कर सकते हो उसको अगर ये आपकी ख्वाहिश है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि स्टेट विद इन स्टेट कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी वो होगी उर्दू। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करने की बात है। They demanded that Bengali should be the state language of Pakistan Center, and since they could not overlook the obvious claims of Urdu as the official language of a Muslim state, they proceeded to demand that both Bengali and Urdu should be state languages of Pakistan. Make no mistake about it, there can be only one state language if the component parts of this state are to march forward in unison, and that language in my opinion can only be Urdu. अच्छा जी, पहले क्या किया कि लैंग्वेज बेस पे एजिटेशन की, प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की तो उन्होंने टैक्टिक्स चेंज कर दिए। टैक्टिक्स क्या चेंज किए कि पहले कहते थे कि चूँकि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज हो तो वो कैसे हो सकती है, बंगाली और उर्दू दोनों होनी चाहिए, या पहले कहा कि बंगाली स्टेट लैंग्वेज होनी चाहिए, फिर कहा कि बंगाली और उर्दू दोनों स्टेट लैंग्वेज होनी चाहिए। ये कोई बात सेंसिबल नहीं लगती, ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यूनिजन के लिए, एक यूनाइटेड कंट्री शो करने के लिए, एक यूनाइटेड फ्रंट शो करने के लिए एक ही लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज मेरे ओपिनियन में क्या है वो उर्दू ही है बस। I have spoken at some length on this subject,
so as to warn you of the kind of tactics adopted by the enemies of Pakistan and certain opportunist politicians to try to disrupt the state or to discredit the government. Those of you who are about to enter the life, be on your guard against these people. Those of you who have still to continue your studies for some time, do not allow yourselves to be exploited by any political party or self-seeking politician. अब कायद ने फिर कंक्लूड किया उस बात का और कहा कि आपने जिन्होंने स्टडीज़ कर ली हैं वो बाहर जब निकलेंगे तो इस किस्म की कंस्पिरेसीज से जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों की और चंद जो मौका परस्त मौका शनास पॉलिटिशियंस हैं जिनको बस कीचड़ उछालने में मज़ा आता है गवर्नमेंट के ऊपर बीइंग एन अपोजिशन, ये जहन में रखे कि पाकिस्तान के जब एडवेंट हुआ तो मुस्लिम लीग के अलावा अक्सरियत जो पार्टीज़ थी जो कि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद थी वो पाकिस्तान के बनने के ख़िलाफ़ थी, ज़्यादातर वो कांग्रेस के सपोर्टर्स थे। तो आप लोगों ने ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़, फिर वही पार्टीज़ पाकिस्तान में भी आई, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में शामिल हुई वो लोग, लेकिन वो स्टिल अपोजिशन में तो रहे। तो ये जो है आप लोग अब जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्टडीज़ को, ऐसी पॉलिटिकल थॉट से दूर रहें और ऐसी पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिशियन से दूर रहें जो कि लैंग्वेज और इस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ और साजिशें और कंस्पिरेसीज़ करते हैं। As I said the other day, your main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride of your state. फिर कायद आज़म कहते हैं कि जब आपका मेन ऑक्यूपेशन, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, स्टेट के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, तो आपकी अटेंशन सिर्फ स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्टडीज़ होंगी तो जो ज़िंदगी के आगे की बैटल्स हैं उसके ख़िलाफ़ आप लोग लेस होंगे, आप आराम से, और ये आपका एसेट होंगे और आपकी स्ट्रेंथ होंगे और स्टेट के लिए फ़ख्र की बात होगी। My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth columnist among yourselves. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. Fourthly, consolidate the Muslim League Party, which will serve and build up a really and truly great and glorious Pakistan. Fifthly, the Muslim League has won and established Pakistan. It is the Muslim League whose duty it is now as a custodian of the sacred trust to construct Pakistan. Sixthly, there may be many who did not lift their fingers to help us in our struggle, nay, even opposed us and put obstacle in our great struggle openly. Not a few worked in our enemy's camp against us, who may now come forward and put their own attractive slogans, catchwords, ideals and programs before you. So यहाँ पे कायद जो हैं 5-6 वार्निंग्स दे रहे हैं। पहली वार्निंग जो दी कि ऐसे साजिशियों से फिफ्थ कॉलमिस्ट जो कि बाहर बैठे हैं पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहिए चाहते हैं। सेकेंडली, खुद गर्ज लोगों से दूर रहें जो कि आपकी टांगें खींचे और ख़ुद आगे बढ़े। थर्डली, ऐसे लोगों से करीब हो जाइए जो कि स्टेट के साथ ऑनेस्ट हैं और ख़ुद गर्ज नहीं हैं और वो लोगों की मदद करना चाहिए अपने तन मन धन से, उनको सपोर्ट करें। फोर्थली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो उस वक्त की मुस्लिम लीग है उस पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि यही पार्टी जो है वो जिस वक्त कायद इसके लीडर थे ये इस काबिल है कि पाकिस्तान को मजबूत करे। फिफ्थली, मुस्लिम लीग की ही अब ड्यूटी है कि बीइंग अ कस्टोडियन वो अपनी ड्यूटी पूरी करे और पाकिस्तान के सेक्रेट ट्रस्ट का दिफा करे। सिक्सली, ऐसे लोग जिन्होंने हमें सपोर्ट भी नहीं की बल्कि उल्टा हमारे ख़िलाफ़ आए, और बहुत सारे हैं जो कि हमारे एनिमी कैंप में बैठे हुए थे जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं, और वो अब आगे आएंगे और अपने स्लोगन्स नारेबाजियाँ करेंगे, कैची वर्ड्स आपके सामने करेंगे, आइडियल्स फ्लैश करेंगे, और उनसे दूर रहें। बट दे हैव नॉट
they have yet to prove their bona fides or that there has really been an honest change of heart in them. By supporting and joining the league and working and pressing their views within the league party organization and not by starting mushroom parties. At this juncture of very great and grave emergency, when you know that we are facing external dangers and are called upon to deal with internal complex problems of a far-reaching character affecting the future of 70 billions of Pakistan people. अच्छा, अब यहाँ कायद कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी मुस्लिम लीग पार्टी में आ चुके हैं. अब ये लोग, इनको देखना पड़ेगा, उनके किरदार को देखना पड़ेगा कि वाया वो इस काबिल हैं भी कि नहीं, कि ये लीग की जो ओरिजिनल सोच है कि पाकिस्तान को तरक्की देना है उसका हिस्सा है, या ये अपने व्यूज़, अपनी जो राय है वो लीग पार्टी के अंदर देना चाहते हैं और अंदर जो है छोटी छोटी मशरूम पार्टीज़ यानी छोटी छोटी टोलियाँ. जो करंट मुस्लिम लीग है उसका हाल देख लीजिए, वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में बटी हुई है, मुख्तलिफ उसके अंदर ग्रोह बने हुए हैं. तो उस वक्त भी कायद इस चीज़ को देख रहे थे कि अगर मुस्लिम लीग ने अपना वो जो कहते हैं बेस छोड़ दी तो वो ऐसी मशरूम पार्टीज़ में डिवाइड हो जाएगी, और यही करंट सिचुएशन है. तो क्योंकि इन पार्टीज़ को, यानी ये सोचना चाहिए इन लोगों को कि ये मुल्क एक इमरजेंसी कंडीशन में है, हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं और इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं जिनके बहुत सारे हमारे किरदार के ऊपर असरात होंगे. और यहाँ पे 70 मिलियन लोगों का, यानी 70 मिलियन, 1 करोड़ 70 लाख लोगों का, 1 करोड़ 70 लाख लोगों का तकरीबन, ये 70 बिलियन, ये कितना बनता है 70, 1 मिलियन 10 लाख. सो कैलकुलेट कर लीजिए, 70 मिलियन जो उस वक्त की पाकिस्तान की आबादी है 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, और ये 70 मिलियन लोग हैं. तो 70 मिलियन लोगों का मतलब ये तकरीबन हो गया 70 करोड़ लोगों का फ्यूचर है जो कि दाव पे लगा हुआ है. 7 करोड़ लोगों का, जी 7 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल जो है वो यहाँ पे दाव पे लगा हुआ है. सो इस चीज़ को देखिए. All this demands complete solidarity, unity and discipline. I assure you, divided you fall, united you stand. There is another matter that I would like to refer to. My young friends, hitherto, you have been following the rut. You get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained and well-equipped clerks. अच्छा, अंग्रेज़ की साजिश थी, ये बिल्कुल कंस्पिरेसी थी कि क्लर्कों की जो नौकरी थी वो उस वक्त बड़ी वो थी, उसमें आमदनी ज़्यादा थी क्योंकि करप्शन थी. आजकल भी वो करप्शन जो है वो आप देख सकते हैं, लोअर लेवल्स पे ये करप्शन अब भी पाई जाती है कि बस स्टेट के लोगों को क्लर्की की नौकरी पे लगा दो, बस बहुत सारा पैसा मिल जाता है. तो अबव द टेबल और अंडर द टेबल, यही बात कायद आज़म कर रहे हैं, यही बात वाइस चांसलर ने भी की कि सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आप लोग डिग्रीज़ लें और जब यूनिवर्सिटी से निकलें तो बस आप लोग कहें क्या करें कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज को ही ढूंढें. नहीं, ये मकसद नहीं है पढ़ाई का. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. कायद इस चीज़ के ऊपर काफ़ी नज़र रखते थे. अभी भी हमारी अक्सरियत की सोच यही होती है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए. ऑफ कोर्स सम ऑफ देम वेंट हायर एंड फाउंड देयर लेवल, बट द होल आइडिया वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स. Civil service was mainly staffed by the Britons, and the Indian element was introduced later on, and it went up progressively. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology and a state of mind that an average man when he passed his BA or MA was to look for some job in government. अब यहाँ पे देखें कायद आज़म ने उस वक्त ये बात की कि जस्ट मैंटेलिटी ये है कि BA MA की और एक अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढ ली. कुछ लोग तो क्लर्की से आगे निकल जाते थे. उस वक्त CSS के जो ऑफिशल्स थे वो ज़्यादातर अंग्रेज़ होते थे, बाद में कुछ इंडियंस भी उसमें शामिल हुए, लेकिन मेन चीज़ यही थी कि बस और कुछ नहीं है, बस सिर्फ सरकारी नौकरी मिल जाए, बाकी जॉब सिक्योर ही नहीं है. अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स का, अभी भी बहुत सारे लोगों का, इवन हम लोग, इवन एज टीचर्स,
बहुत सारे हम लोग यही फील करते हैं कि बस गवर्नमेंट जॉब हो गई है। नहीं, ये मकसद नहीं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के बगैर भी बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अपने आप को इस चीज़ तक लिमिट कर देना कि मैंने बस इंजीनियरिंग चूँकि की है तो मैं इंजीनियर ही बनूंगा, मैंने सिर्फ मेडिकल पढ़ा है तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा, या बस मैं सरकारी नौकरी करूंगा क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है। पढ़ाई का ये मकसद नहीं है। इफ़ वी हैड it, he thought he had reached his height. I know, and you all know what has been really the result of this. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants are living in more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. Now I want you to get off that rut and that mentality, and especially now that we are in free Pakistan, गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्व 1000 इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे शिकायत कह रहे हैं कि ये जो रट है, ये जो रट होता है, ये जो गाय को ना पानी निकालने के लिए राहट जो कहते हैं, देहात में अक्सर देखा होगा, वो बैल जो है या सांड जो है वो गोल गोल घूमता रहता है, बस एक चक्कर में है। तो वो जो रट है उससे निकलें। जस्ट ये एमए कर लिया, गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए। तो उस वक्त ये था कि टैक्सी ड्राइवर्स भी बाज़ गवर्नमेंट सर्वेंट से बेहतर जॉब पैसे कमा रहे थे, क्योंकि उस वक्त गाड़ियाँ इतनी नहीं थी। अभी तो ये आम हो गई हैं, और बहुत सारे सर्वेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन सर्वेंट्स की जो नौकर हैं, उनके जो मालिकान हैं वो ठीक ठाक पैसा कमाते हैं या ठीक ठाक पैसे वाले हैं, तो बस लोगों के पास पैसा आ रहा है। तो इस मेंटालिटी से निकलें। ये जो मेंटालिटी है ना, अपने आप को लिमिट कर देना, बेसिकली मॉडर्न कंटेक्स्ट में इसको मैं ऐसे समझूंगा कि आपने जो अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है, इस लिमिट से निकलें। लाजमी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट वही जॉब मिले जो आपने डिग्री की है ना। आप लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि बस यही दुनिया है, नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी जॉब्स हैं। ये जो फ्रेश बिजनेस माइंडेड लोग आ रहे हैं, ऐप्स पे देखे थे कि फूड पैंडा कैसा एक आइडिया है, ठीक है। आजकल एक चीता सर्विस भी शुरू हुई है, तो ये भी तो कोई चला रहा है ना, बिजनेस चला रहा है, ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए चला रहा है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया है, यूट्यूबर्स इधर हैं, टिकटॉकर्स हैं, बहुत सारे अब प्रोफेशंस, बहुत सारे अब चीज़ें खुल गई हैं जो पहले नहीं थी। तो इसलिए आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, और एक शख्स अगर कोई न्यू आइडिया जनरेट करके उससे आगे बढ़ता है तो क्यों ना उस आइडिया के ऊपर चले। तो गवर्नमेंट इतनी सारी जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकती कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए। But in the competition to get government service, most of you demoralized. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else, and being disgruntled as always, ready to be exploited by persons who have their own access to grind. Now I want that you must divert your mind, your attention to your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. बस गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, मुंह फुला के बैठ गए, डिमोरलाइज हो गए, हो इतनी पढ़ाई की, नौकरी नहीं मिल रही, गवर्नमेंट में भी जॉब नहीं मिल रही। ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बिहेवियर ठीक नहीं है। गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट तक लोगों को सर्विसेज दे सकती है, उनको जॉब्स दे सकती है, बाकी ये नहीं कि बस आप लोग डिग्री लेके घर पे बैठ जाएं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, फेसबुक पे आजकल एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। इंजीनियर्स के और मेडिकल डॉक्टर्स की बहुत सारे जोक्स चल रहे हैं कि इंजीनियर है जी और उसने खोखा खोला हुआ है, इंजीनियर की डिग्री की हुई और जी वो जो है वो होटल चला रहा है। तो क्या हो गया भाई, क्या इससे वो रिस्क ना कमाए? यानी उससे क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है? वो तो रिस्क कमा रहा है, और रिस्क कमाना तो कोई बुरी बात नहीं। अगर एक शख्स, ये भी तो हो सकता है कि उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री उसने की हो, तो डिग्री का मतलब ये तो नहीं हो जाता कि वो मेंटली, एक तो ये है कि रिस्क का फैसला अल्लाह के हाथ में है, ये भी एक अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन डिग्री हासिल करना, डिग्री तो बहुत सारे लोग हासिल कर लेते हैं, तो क्या वो इस काबिल है कि उसे नौकरी दी जाए? ये भी एक सवाल है। फिर क्या उसने वो डिग्री जो है वो बाय फेयर मीन्स हासिल की है या अनफेयर मीन्स हासिल की है? तो ये चीज़ जो है, ये हाँ, एक शख्स ने मेहनत की है और फिर भी उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो डिमोरलाइज हो जाए। वो बैठे, वो सोचे, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की सोचे, लेकिन किसी के हाथों एक्सप्लॉइट ना हो कि चूंकि उसको नौकरी नहीं मिली तो बस ठीक है जी, जो भी एंटी स्टेट या एंटी किसी उसके
मोमेंट आती है कंट्री की, बस उसमें शामिल हो जाए। चूँकि मुझे नौकरी पाकिस्तान ने नहीं दी तो बस मैं इसके ख़िलाफ़ गालियाँ दूंगा, या ये जो हम लोग एक टैबू जुमला है पाकिस्तान है जी सब कुछ चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन ये है कि चेंज कौन लेके आएगा, वो तो आप लोग लेके आएंगे, और उसके लिए आपको अपनी ये मेंटेलिटी चेंज करनी होगी। तो ये सारी चीज़ है, और ये अभी भी मॉडर्न एरा में भी, ये मैंने जब कहा कि ये यूनिवर्सल एक अपील है इसके अंदर, तो ये यूनिवर्सल अपील है। और कायद ने उस वक्त ये चीज़ें बताई, ये नहीं कि कायद कोई प्रेडिक्टर थे या कोई बहुत बड़े वली थे जिन्होंने फ्यूचर को देख लिया, ठीक है, लेकिन नहीं, वो एक चीज़ों की हकीकत को देखते थे, और बड़ी लॉजिकल और बड़ी रियलिस्टिक स्पीच कायद ने की है कि ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को सबको जॉब्स मिल जाए, ये है कि आपकी कंपटीशन होगा, आप उसका हिस्सा भी बने, लेकिन आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढे भी और आगे बढ़ने की लगन भी हो आपके अंदर। देयर इज़ नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर। ये बात, ये जो आजकल आप लोग, मैंने कहा ना, फेसबुक पे ट्रेंड्स देखते हैं बड़े अजीब अजीब किस्म के, कि इंजीनियर को दिखाया गया है कि वो होटल या खोखे पे बैठा हुआ है, तो क्या हो गया, कमा तो रहा है ना, वेला तो नहीं बैठा हुआ, तो वो क्या करे, वो कुछ तो करेगा ना, उसने रिस्क नहीं कमाना, उसने अपने घर वालों का वो नहीं करना। सो डिग्री इज़ नॉट a guarantee of a job कि आपको बिल्कुल जॉब मिल जाएगी। There is an immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly। आप लोग, उस वक्त पाकिस्तान को टेक्निकल लोगों की ज़रूरत थी, अभी भी टेक्निकलिटीज़ तो चलती हैं, कि मसलन आप डीएई के बच्चों को देख लें, डीएई के बच्चे जो हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये तो दो फील्ड्स हैं, ये तो सेचुरेट ही नहीं होती, हर वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, हर वक्त इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा होता है। यू कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ एटसेट्रा, बहुत सारी फील्ड्स है, सिर्फ ये नहीं मैट्रिक जी उसने साइंस में की है, आर्ट्स में, ये भी बड़ा हमारे यहाँ एक टैबू बना हुआ है कि एक बच्चे ने मैट्रिक चूँकि साइंस में की है, एफएससी भी साइंस में की है, एफए किया है जी, वो उसने तो आर्ट्स की हुई है, क्यों, क्या एफए वाला या बीए वाला या एमए वाला उसको कोई जॉब नहीं मिलती? बल्कि मैं अक्सर देखता हूँ टेक्निकल एजुकेशन की बेस पे जॉब्स कम हैं, आर्ट्स की बेस पे जॉब ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक्स की फील्ड की जॉब ज़्यादा हैं, इंग्लिश की फील्ड की जॉब ज़्यादा हैं। तो ये जो चीज़ है ये कोई बेस नहीं बनाती कि आप आर्ट साइंस की वो बाइनरीज बनाएं और ब्लैक एंड वाइट बस कर दें, ये जी ब्लैक है ये वाइट है, नहीं, देयर आर ग्रे एरियाज एज वेल। तो आप उन ग्रे एरियाज को ढूंढें, वो जो डिफरेंट शेड्स हैं उनको ढूंढें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. Now these are avenues and fields open to you. Think of them and divert your attention to them. And believe me, you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service and remaining there. In what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions। उस वक्त की जो conditions थी उसका जिक्र कर रहे हैं कायद आज़म। लेकिन मेन मकसद ये है कि आप लोग इस क्लर्की की जॉब के सुबह से शाम तक बैठना है और एक ऑफिस है और उसमें कैबिनेट्स हैं और फाइल्स ही फाइल्स हैं, उनके पाइल्स लगे हुए हैं, नहीं, उससे निकलें। आप लोग जो न्यू एवेन्यूज़ हैं, नए जो रास्ते हैं, नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई जो कंपनीज़ हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ें। You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take commerce and industry and will thus be helping not only yourselves but also your state. I can give you one instance. I know a young man who was in government service. 4 years ago he went into a banking corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking, and today he is a manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. There are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms। फिर कायद-ए-आज़म ने जस्ट बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कि उस वक्त चूँकि बैंकिंग एक नई डिग्री थी, उसके बारे में बताया कि मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ, यंग मैन को जानता हूँ, जो 200 रुपये तनख्वाह पे उसने काम शुरू की, लेकिन वो अपनी बैंकिंग की डिग्री की बेस पे, अपनी मेहनत की बेस पे अभी 1500 रुपये महाना ले रहा है। 1500 रुपये महाना 4 साल में, तो उस वक्त 1500 रुपये बड़ी बात होती थी। इवन 200 रुपये भी बड़ी बात होती थी, लेकिन 1500 रुपये 1940s में बड़ी बात होती थी, ठीक है ना। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप हासिल करें और इस लाइन पे सोचें। सिर्फ ये नहीं कि बस नहीं जी, बस चूँकि बस यही जॉब है जी, गवर्नमेंट जॉब करनी है जी, ये जॉब करनी है जी, डॉक्टर ही बनना है जी, इंजीनियर ही बनना है जी, और सरकारी नौकरी करते हैं जी, नहीं, इस मैंटेलिटी से निकलें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो वेरी रियलिस्टिक स्पीच, very universal
in its appeal. यूनिवर्सल से मुराद ये है कि कायद ने ये बात सन 48 में की है, लेकिन ये बातें अब भी हो रही हैं, यानी इस किस्म के सिमिलर हालात अभी भी चल रहे हैं, तो ऐसी बातों को हम कहते हैं कि यूनिवर्सल हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल मतलब फिनोमेना है। तो ये जो चीज़ें अभी भी आप सोसाइटी में देख सकते हैं। कायद ने वार्निंग दी है लोगों से को, स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट होने से दूर रहने को कहा है कि आप लोग चूँकि कच्चे जहन होते हैं, आपको इस तरह के जो साजिशी अनासर होते हैं जो कि आपके मकसद से भटका दें, यानी आपको वालिदैन के ख़िलाफ़ कर दें, शहर के ख़िलाफ़ कर दें, आपको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या इस किस्म की एक्टिविटीज़ में उलझा दें, तो ये चीज़ें जो हैं इनसे दूर रहें और अपने फ्यूचर और स्टेट को के बारे में सोचें और स्टेट की डेवलपमेंट में मदद करें। सिर्फ ये नहीं कि स्टेट से एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, सवाल ये है कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया, ये भी अपने जहन में रखें। ये क्योंकि रेसिप्रोकेट करता है। सिर्फ ये तो नहीं कि बाहर रोड पे निकल के तो कहें हाँ हाँ रोड कितनी गंदी है, सफाई नहीं हुई, लेकिन खुद ही जूस का डब्बा उठाया हुआ है और वो पिया और जूस का डब्बा उसी रोड पे फेंक दिया। नहीं, अगर आप कहते हैं कि रोड साफ़ हो तो फिर आपको भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप वो जूस का डब्बा उठा के डस्टबिन में फेंकें। आई होप कि आपको इस स्पीच का मकसद समझ आ गया होगा और इस स्पीच को इस बुक के अंदर इंक्लूड करने का भी मकसद समझ आ गया होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ये जो टेक्स्ट है ये आप स्टूडेंट्स को अपील करती है, यानी आपसे जैसे कायद-ए-आज़म अब भी मुखातिब हों। सो थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपने समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।